congruency and similarity. ओके, सबसे पहले तो किसी ने पूछा था हाउ AES इज सेम एज एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो बेटा अगर हम AES लेंगे, लेट्स से these two triangles I am taking and I am saying this angle is equals to this angle and this angle is equals to this angle and this is 5 centimeter 5 centimeter. Are these two triangles congruent? Yes, they are congruent by angle side theorem. Yes, But sir. angle side is same as angle side angle. Why? Because by angle sum property, if two angles are equal, then third angle automatically becomes equal. ठीक है, अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो थर्ड एंगल क्या होगा बेटा? इफ दिस इज x, दिस इज y, this is x, this is y, in both cases this angle becomes 180 minus x minus y, and thus the third angle will be equal. Okay? So in a way, when we say two angles of a triangle are equal, then that statement is exactly same as three angles of the triangles are equal. ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता ना। तो बेसिकली व्हेन आई से एंगल साइड एंगल और एंगल साइड, both of them are telling me that if any two angles are equal, that means if all the three angles of a triangle are equal and one side is equal, then the triangles will be congruent. है ना, दोनों केस क्या बोल रहे हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, जिससे ऑटोमेटिकली डिड्यूस हो रहा है कि तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, एंड वन साइड इज इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो एंगल हमारी बुक्स में जो है एंगल साइड एंगल इज व्हाट इज गिवन, बट इसी की ही एक और फॉर्म है, दैट इज एंगल साइड. एग्रीड? Yes. अब यहाँ पर बेटा देखो, अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, देयर आर टू ट्रायंगल्स इन विच all the three angles are equal and one of the side of the triangles are equal, ठीक है, then the triangles will be congruent. True or false? Chat box. बेटा आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी आर में, ठीक है। आप एंगल साइड लगा रहे हो तो AES लिखो, और अदरवाइज Can you please repeat the question? क्वेश्चन इज Yes, sir. given that in two triangles all the three angles are equal and one of the sides in each triangle is 5 centimeter, then both the triangles are congruent. सर आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं सर प्लीज? Okay, अभी क्लियर है बेटा वॉइस? यस सर. Okay, good. So I am getting so many answers as true, but the statement is false. ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोल रही है बेटा? स्टेटमेंट इज सेइंग इफ three angles are equal, है ना, let's say these three angles are equal and one of the side in each triangle is 5 centimeter. In this case this is 5 centimeter, in this case this is 5 centimeter. मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई तो नहीं किया कि corresponding sides are equal or you know sides with same angles on each sides are equal, ठीक है। So अगर तीन angles equal हैं और one side I said are of 5 centimeters each, then triangles may be or may not be congruent. Data is insufficient. It's not clear that the sides which are equal are corresponding sides or not. Agreed on this? सर शायद आपने corresponding बोला था. नहीं, I said both the triangles have got one side each as 5 centimeter. ठीक है, because I have got so many false answers also, so definitely they have understood the question clearly. Okay, अंगद आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं?
सर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी क्या होती है? ओके बेटा, अगर ये एक ट्राइंगल लिया मैंने, है ना, और इसी की ही मैंने फोटोकॉपी बनाई, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। बट इस ट्राइंगल की फोटोकॉपी बनाते हुए मैंने जूम इन किया या जूम आउट किया, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल is multiple or many x times of the original triangle. So अगर that original means triangle that को आप, हाँ जी, sir, so it means that the dimensions of the triangle will be different. no 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 no, it means देखो congruent triangles are also similar, ठीक है, so it means that the dimensions of the triangle will be x times. Two triangles are similar when the angles are equal, one thing. Second is two triangles are similar if ratio of sides is equal. ठीक है, अब वो रेशियो ऑफ साइड अगर 1:1 हो गई तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। ठीक है, डायमेंशन सेम है बट ट्राइंगल्स इन दैट केस आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर आल्सो एज वेल एज सिमिलर। ठीक है, if I am saying this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, 5 centimeter, this is 3 meter, 4 meter, 5 meter. Now these two triangles are not congruent but they are similar. ठीक है, sides is becoming 100 times. Okay, sir. हाँ जी, एग्रीड, आगे करें। Yes, sir. Yes, sir. सर कॉन्ग्रुएंसी तभी होती है ना जब साइड्स भी इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंसी when at least one side is equal, है ना, कॉन्ग्रुएंसी के लिए रिक्वायरमेंट जो है एटलीस्ट वन साइड शुड बी इक्वल, बट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल। अगर खाली एंगल्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूव नहीं कर सकते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द साइड शुड बी इक्वल। हाँ जी, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। यस Okay, let's take a question here. This is a square is here. On the square, I have put down below an equilateral triangle. You have to prove that these two triangles which are forming, let's name this first. This is A, B, C, D, this is E. So prove that triangle AED is congruent to triangle BEC. हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सबसे पहले तो यू राइट डाउन, है ना, Given. टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर तो प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BEC। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप सर BE is equal, B is equals to AE, equilateral triangles की sides. AE is BE, ठीक है, दिस इज sides of equilateral Equilateral triangle. Then you have got AD is equals to BC. This is sides of Square. square. हाँ जी, एंगल DAE is equal to एंगल CBE. वेरी गुड। ये जो एंगल है बेटा ये 90 है क्योंकि स्क्वायर है, और ये भी 90 है। दिस एंगल इज 60 बिकॉज इक्विलेटरल एंड दिस आल्सो इज Equilateral. 60। ठीक है, सो यू विल से दैट एंगल DAE is angle EBC is equals to 90 plus 60. Therefore, triangle AED is congruent to triangle BEC by SAS congruency. सर एक डाउट था हाँ जी, सर, जैसे कि इसमें E जो है अगर हम उसको एक एज एंगल लेते हैं तो वो भी तो कॉमन पड़ रहा है। नहीं बेटा,
जो E आप कॉमन बोल रहे हो वो अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल अलग है पहले ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल E बन रहा है। तो कॉमन तो वो होता है जब सेम हो, ये तो एंगल ही अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। Okay, sir. हाँ जी, राइट। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट यू थिंक ऑन इट, आई नो मोस्ट ऑफ यू विल गेट इट, बट let's give chance for others also, and if you're not getting it then we'll check the solution कि हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए सॉल्यूशन को लेकर। given that this is P Q S T U and R, okay? Given that PQ is equals to QR, this particular angle is equals to this angle, and this angle is equals to this angle. Prove that, to prove, क्वेश्चन लिखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। दिस इज टू प्रूव QT is equals to QU. सर हाँ जी बेटा। प्रार्थना, कबीर, अपूर्व, राइट डाउन रोल नंबर। चलो लेट्स सी इट, रेज योर हैंड हु हैज रिकॉर्डेड द आंसर। वन इज अभिराज, ओके लेट्स स्टिल वेट। दक्ष, मनोल, रोहन, निशात। ओके लेट्स कॉल रोहन। रोहन कैसे करेंगे बेटा? Sir, first we'll take up a triangle PQS and triangle QSR. Okay, very good. In triangle PQS and triangle RQS. Yes, हाँ sir. जी, Sir, then QP is equals to QR given. given. Okay, Then, sir, angle angle Q. Sorry, sir. This angle PQT plus angle ठीक है, PQS it is also will be given. equals to, yes, sir. And And then QS is common. very good. So triangles are congruent. Yes, sir. And by CPCT, we have QT equals to QU. No, QT और QU तो कभी पार्ट ही नहीं थे बेटा इसके। निशार था, बोलो। Sir, when we have proved that triangle PQS is congruent to triangle RQS, then हाँ sir, जी, we also get that angle PQT is equal to angle RQT given. Uh, PQ is equal to RQ given, and angle QPT is equal to angle QRU by CPCT. हाँ जी। There तो बेटा पहले हेलो वेट पहले यहाँ पर CPT से लिखो आप, है ना। So what Nishat is saying is very correct. He is saying that this angle is equals to this angle.
Why these angles are equal? By CPCT in this case. So he is saying this is angle P is equals to angle R by CPCT. Here you will mark this as 1, and then you will take the triangles again. In triangle PQT and सर हम एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल QSR भी ले सकते हैं QS, सर हाँ एंगल PSQ हाँ सर वाला भी ले सकते हैं आप. So in triangle PQT and triangle PQT and triangle RQU. ठीक है, अब यहाँ पर आप वापस बोलेंगे that is PQ is equals to QR. This is given. Then is angle PQT is equals to angle RQU. This is given, and angle P is equals to angle R from 1. Therefore, triangle PQT is congruent to triangle RQU, or QT is equals to QU by CPCT by ASA congruency. लास्ट में क्या लिखेंगे? Hence proved. Very good. Hence proved. सर hence proved लिखना कंपलसरी होता है? नहीं, इतनी मेहनत की है तो कुछ तो साइन तो लिखने हैं अपने. But you should write hence proved. ठीक है बेटा, इसमें ना हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं तो हमारे कॉन्ग्रुएंसी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं. ठीक है, जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम. फर्स्ट कॉपी दिस. आपके एग्जाम्स में जितने भी टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो इन्हीं 8-10 क्वेश्चंस में से आपके आएंगे, है ना. बियॉन्ड दैट देयर आर नो अदर क्वेश्चंस इवन इन RD शर्मा और RS अग्रवाल. And even if questions are there, you know the right approach for it. Okay, सभी ने कॉपी कर लिया है? नहीं सर, एक मिनट. Okay. सर ये आपने सैटरडे को बोला था कि हम एक क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे. दोबारा बोलो बेटा. सर आपने सैटरडे को क्लास एंड होने से पहले बोला था कि हम एक क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन दिया था हमें और आपने कहा था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे. कौन सा क्वेश्चन था? सर मैंने लिख रखा है. ओके, लेट मी सी. सर आपने कहाँ पर भेजा बेटा वो? सर एक्चुअली सर वो वाला क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल ABC right angle at C is the midpoint of hypotenuse AB. एक मिनट, हरदीप आपकी आवाज कम आ रही है. गर्व आप बोलो, क्या कह रहे हो? सर वो जो उस दिन आपने सैटरडे को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C. तो जिसमें एक सर दो ट्रायंगल्स बन रखे हैं, उसके अंदर M एक मिड पॉइंट है. ओके. जैसे एक स्क्वायर बन रखा है और इसका जो अपर साइड है वो नहीं है और उसकी जगह पे दो स्क्वायर बन रखे हैं. सर ये यस सर ये वाला. अच्छा, ये वापस लेना था हमें दोबारा इसमें. ओके गुड. चलो विल टेक दिस क्वेश्चन अगेन, है ना. ये क्वेश्चन वापस लेने का एक प्राइम रीजन ये भी है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का. ठीक है, तो ये एक्चुअली आई मेक स्टूडेंट्स टू राइट इट डाउन ऑल्सो. So last time I think Daksh has given the answer for this.
तो दक्ष अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज देयर, this is ABC, M is the midpoint and thus this is equals to this. CM को हमने join किया है and we have extended CM such that CM is equals to MB. So this is equals to this. Now I have joined, this is D, you know, I have joined BD, this I have joined. You have to prove that. Chalo, please write down this. To prove CM is equals to half of AB. Given क्या है हमें, triangle ABC is right angled, and what else is given, that M is midpoint, so BM is equals to AM, and given that CM is equals to DM. And now comes your proof. हाँ जी, प्रूफ में पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा? Triangle DBM and triangle CM. Very good. Triangle CMA, in triangle CMA and triangle DMB. So it's given that DM is equals to CM. This is given, and angle DMB is equals to angle, sorry, not, okay, DMB is equals to CMA, vertically opposite angles, and you have got BM is equals to AM. Therefore triangle DMB is congruent to triangle CMA. ठीक है ना? This is by side angle side congruency. यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, हम Yes, इन sir. ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं, दिस ट्राइंगल्स एंड दिस ट्राइंगल. नेक्स्ट स्टेप बताओ. So angle VDM is equal to angle ACM. So by CPCD. Very good, impressive. So angle BDM is equals to angle ACM CPCT. Okay, then what? So therefore DB is parallel to AC. Alternating BD is parallel to AC. AC. यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, as they are alternate interior angles, therefore BD is parallel to AC. Then what? So angle DBC is equal to 90 degree because if the lines are parallel, so co-interior angles. ना 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 ना, थोड़ा सा स्टेप देना पड़ेगा. आपने पहले तो एंगल का नाम गलत बोला, तो यू से, अच्छा आप शायद आपने सही बोला होगा, मैंने गलत सुना है. एंगल DBC प्लस एंगल ACB है ना. प्रेजेंटेशन में यू हैव टू राइट इट डाउन फुल, ठीक है. एंड दिस यू राइट डाउन को इंटीरियर एंगल्स. देन यू से एंगल DBC plus 90 is 180 degrees, given angle C is 90 degrees and angle DBC is 90 degrees. This you mark it as 1. चलो एक small pause है ना, first copy it down.
हमने अभी तक ये प्रूव किया ये दोनों येलो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, प्लस वी हैव प्रूव दैट दिस इज 90 डिग्री। सेकेंड स्टेप में हमने प्रूव किया था दिस इज पैरेलल, तो यू कैन राइट दिस एज फर्स्ट स्टेप, दिस बिकम्स माय सेकेंड स्टेप, दिस बिकम्स माय थर्ड स्टेप। सर जो सीपीसीटी होती है सर, हम उनसे कोई भी एंगल्स इक्वल कर सकते हैं या साइड्स? कॉरस्पॉन्डिंग है ना, सारे इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा? एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल सी। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो भी ऑर्डर वाइज ही लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ डीएमबी लिखा, यहाँ पर एसीएम लिख दिया या एमसीए लिख दिया, नहीं, दैट्स नॉट अलाउड। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यू हैव टू मैच। ठीक है, आई पोस्ट द बेसिक सॉक्रेटिव अगेन। तो बेसिक सॉक्रेटिव है, जिनके मार्क्स कम आए हैं दे कैन अटेम्प्ट इट अगेन। ठीक है, ऑप्शनल क्विज रहेगी, तो उसमें ऑल द क्वेश्चंस आर देयर टू प्रैक्टिस मोर कि विच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल। ये समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ जी, आगे बताओ। अभी ये हाँ जी, बोलो। हाँ जी, कौन से ट्रायंगल हो गए? Sir, DBC and So DBC ACB. and ACB. Very good. So in triangle DBC and triangle ACB, ठीक है, इसमें वापस कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे हम। So we are getting that this is साइड कॉमन है, ये वाली हमारी जस्ट। ठीक है, ये साइड हमारी कॉमन आ रही है बेटा, जो 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज देयर। थर्ड थिंग क्या लेंगे हम? DB equals to AC. Very good. BD is DB is equals to AC. That is from this congruency of triangles, है ना? तो आप यहाँ पर हम मिस कर गए हैं, यहाँ पर आपके पास आपकी एक और स्टेटमेंट आएगी, that is at this point, that will be BD is equals to AC by CPCT. This you mark it as 1 and this you mark it as 2. Now you write down here BD is equals to AC from 1 and angle B is equals to angle C is equals to 90 degrees and from 2 and BC is equals to BC. This is common. Therefore, triangle DBC is congruent to triangle ACP by side angle side. Therefore, CD is equals to AB by CPCT. Thus, half of CD is equals to half of AB, and this is CM is equals to half AB, as CM is equals to DM. Hence proved. ठीक है, 4 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सर इसके बाद सर 1 मिनट के लिए सर वो पिछला वाला क्वेश्चन दिखा देंगे? Okay. सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए प्लीज। कौन सा नीचे पार्ट?
जूम इन करना है, जूम आउट? क्लियर है अभी? Zoom out, out. आउट। Sir, वो सर इसके बाद सर आप 1 मिनट के लिए वो ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा देंगे? हाँ जी ठीक है। ये कॉपी किया है सबने? यस सर। Yes, sir. please wait. कौन सा क्वेश्चन था बेटा ऊपर वाला? 1 मिनट। ये वाला क्वेश्चन। यस सर। सर अगर इसमें हम जो पहली जो हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे हैं PQS और सर RQS, सर तो उसमें QT और सर QU जो है सर वो पार्ट्स भी तो हैं सर। वो पार्ट्स का है, ट्रायंगल के पार्ट्स नहीं है बेटा, वो तो बीच में कोई हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। सर उनको हम CPCT से इक्वल दिखा के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं बेटा, ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, दोज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो आपका QT QU वो तो ट्रायंगल की ना तो साइड है ना ही वर्टेक्स है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं है। ठीक है, हाँ जी क्लियर है बेटा? यस सर। चलो भाई, इस चैप्टर में और इस जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोज आर थ्योरम्स आर देयर, है ना, 2 थ्योरम्स आर देयर, तो उनके प्रूविंग्स जो हैं दोज आर इम्पोर्टेंट वंस। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट थ्योरम इज इफ 2 साइड्स, डाउन कर ले। हाँ जी बिल्कुल, ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल or are unequal. If 2 sides of a triangle are unequal, then the longer side has greater angle opposite to it. और एक बार ऊपर वाला भी दिखा दो प्लीज। बेटा इल पोज द रिकॉर्डिंग है ना, आप उसमें कॉपी करना, अदरवाइज पहले तय करो, है ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो आप। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इस ट्राइंगल में बेटा हमें गिवन क्या है, दैट इन ट्राइंगल ABC, देखो हमें प्रूव क्या करना है, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, तो हमें गिवन है कि AC इज ग्रेटर देन AB। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है दैट, क्या प्रूफ करना होगा एनीवन? एंगल C is more than angle B. एंगल C, फिर से देखो, Angle B is greater than angle. एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल है। ठीक है, ये जो साइड है AB, इसके अपोजिट में ये एंगल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आएगा, draw BD such that D lies on AC and AB is equals to AD. सर एक बार जो थ्योरम लिखा है सर वो जो सेंटेंस है एक बार उसे समझा दो। Okay.
बेटा थ्योरम बोल रही है कि अगर आपने कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है, this is 7 centimeter, this is 8 centimeter, this is 4 centimeter, then the bigger side will always have a greater angle opposite to it. सबसे बड़ी साइड 8 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ा एंगल x होगा, दूसरे नंबर पर एंगल y होगा, थर्ड नंबर पर एंगल z होगा. तो x is greater than y is greater than z. ओके सर. ठीक है, greater side has got greater angle opposite to it. चलो यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ में आई है सबको? नहीं ओके, प्रूफ. ठीक है, प्रूफ लिखने से पहले एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको. इफ लेट्स से दिस एंगल इज एंगल 1, हाउ मच विल बी दिस एंगल? लो 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल ए. हाँ, एंगल ये तो गिवन ही नहीं है, क्या कर रहे हो? एंगल 1 होगा. अभी तो हमने किया ना AB इज इक्वल टू AD, तो ये ट्राइंगल हमारा ABD कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो दिस इज आल्सो एंगल 1. एग्री? लेट्स से ये एंगल 2 है और ये वाला एंगल जो है दिस इज एंगल 3. सो 1 to 3 के बीच में क्या रिलेशन है? 180 माइनस एंगल 7. क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम फिर से बताओ, 1 to 3 के बीच में क्या रिलेशन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस. वेरी गुड. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3. ठीक है, अगर मैं दोनों साइड एंगल 3 ऐड कर लूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3. एंगल 1 प्लस 3 किसके इक्वल है? एंगल 2. एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3. ठीक है, एंगल B इज एंगल C प्लस समथिंग. That means angle B is greater than angle C, and this is what we had to prove. समझ में नहीं आया तो फिर से, है ना? सर समझ में नहीं आया. अभी ये वापस समझा दो. ओके, नोट मत करो, है ना, सिर्फ समझो. अभी देखो बेटा, ये हमें ट्रायंगल गिवन है. ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें जो गिवन है कि AC इज बिगर एंड AB इज स्मॉलर. आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि एंगल B दैट इज अपोजिट टू AC इज बिगर देन एंगल C. ये आपको प्रूफ करना है. तो हमने पहला काम क्या किया, क्योंकि AC बिगर है AB से, सो अ पार्ट ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू AB, और ये हमारा एक्स्ट्रा लेंथ आ गई. ठीक है, तो this point at which AD is equals to AB and I am joining this point. यहाँ तक कंस्ट्रक्शन क्लियर है? यस सर. ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कि मेरी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी थी कि ये दोनों इक्वल होंगे. अगर ये इक्वल है so we can do the marking here. 1 minute. So this is angle 1, then this is also angle 1. बाकी एंगल्स को मैं मार्क कर रहा हूँ. आई एम सेइंग दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3. ठीक है, दिस इज योर एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 1. एनी डाउट एनीवन? ठीक है, अब सर एंगल कैसे सेम हो जाएंगे?
क्यों बेटा, ये हमारे आइसोसलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसलेस ट्राइंगल. ओके सर. Anyone else? Okay, so what will angle 1 is equals to, ठीक है. सर एंगल सर AB सर साइड AB और AD सर इक्वल कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने AC पर एक पॉइंट लिया है D, such that AD is equals to AB, और फिर उसके बाद हमने BD को ज्वाइन किया था. यश क्लियर है? सर तो जैसे कि आपने वहाँ पे 1 और 3 वो एंगल लिए हैं बी वाली जगह पे, तो डी पे भी तो 3 होना चाहिए था. E पे 3 होना चाहिए था. क्यों बेटा, ये देखो एक बार, अभी यहाँ तक क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं है? सर ठीक है, बस अब ये जो एंगल बच गया, ठीक है, इस एंगल को मैं 3 ले रहा हूं. इक्वल क्या है? AD इक्वल है बेटा. कंफ्यूज हो रहे हो आप शायद, है ना? AD इज इक्वल्स टू AB. ओके सर समझ. ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इस वाले ट्राइंगल में, कौन से में, BCD में. BCD में एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट? यस सर. सो वी आर गेटिंग एंगल 3 अगर हम दोनों साइड ऐड करेंगे, सो दिस इज एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, है ना? मैंने एंगल 3 दोनों साइड ऐड किया है. दिस बिकम्स माय एंगल B. एंगल B इज एंगल C प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. ठीक है, चलो एक बार नोट डाउन करते हैं इसे, फिर भी कुछ डाउट होगा जस्ट आस्क मी. स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. सबको कंस्ट्रक्शन तक क्लियर है सब चीजें? ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है BD को सच दैट AD इज इक्वल टू AB. सर हाँ जी. सर ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं क्या टेस्ट में? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में बताया था पूरे चैप्टर में मुश्किल से 10% क्वेश्चन है ना, 3 और 4 क्वेश्चन यहाँ कंस्ट्रक्शन है. और वो जो आपने नीचे ट्रायंगल के नीचे वो जो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 किया वो समझ नहीं आया. इसकी याद करो, इसकी. यस सर. यहाँ ये क्लियर है आपको? यस सर. ठीक है, अब ये स्टेप बेटा वापस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप समझना. ठीक है, ओके. इफ वी आर सेइंग प्रूफ की हम बात कर रहे हैं, तो लेट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल 1. ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं AB इज इक्वल्स टू AD. AB AD के इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंड एंगल ACB is equals to 2 and angle BDC is equals to angle 3. पहले तो हम ये जो अज्यूम किए हैं 1 2 3 एंगल, वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है. सर एंगल 3 DB. सर एंगल 3 DBC. एंगल 3 is DBC, sorry, angle DBC. Then we'll say in triangle BDC. ठीक है, अब हम इस BDC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. इन ट्राइंगल BDC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. अब यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा, जिसको डाउट है ना,
एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3। मैंने दोनों साइड सिर्फ एंगल 3 को ऐड किया है। इक्वेशन है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोनों साइड। एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल है, चेक करेंगे। हाँ जी, ये एंगल 1 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 2 जो है वो एंगल सी के इक्वल था, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ठीक है, इसका मतलब है बी जो है वो सी प्लस समथिंग है, दैट मीन्स एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, हेंस प्रूव्ड। सर आपने दोनों साइड्स एंगल 3 क्यों ऐड करा था? ताकि बेटा मेरा एलएचएस में एंगल बी बन जाए। मेरे को प्रूफ तो एंगल बी ग्रेटर देन सी करना था। सर हम कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन, किसी Yes, भी sir. इक्वेशन में आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट मल्टीप्लाइंग विद जीरो। ठीक है, इक्वेशन रिमेन्स वैलिड इफ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग ऑन बोथ साइड्स और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट विद एनीथिंग। लेकिन सर अगर जीरो से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सर दोनों साइड जीरो हो जाएंगी, लेकिन इक्वल तो रहेंगी वो तो। इक्वल रहेंगे बट इक्वेशन गायब हो जाएगी हमारी, है ना। ओके सर सेकंड लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस 2 3। ये वाला समझ में आया, ये इसके इक्वल है। सर ये बी वाला एंगल 1 ये समझ आ गया, बट सर आपने सेकंड लास्ट स्टेप में 2 को बाहर लेके एंगल 2 इंटू एंगल 3 कैसे हुआ? बेटा दो एंगल 3 है, यस सर। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 है ये। यस सर समझ आ गया। सर जो थ्योरम होती हैं और सर जो एक्सियम्स होते हैं सर उसमें डिफरेंस क्या होता है? बेटा अभी बहुत ज्यादा डाइवर्शन हो रहा है ना, मेरे को कंप्लीट करना है। थ्योरम जो है आपका दैट इज सम मोर और लेस दे आर सेम ओनली। ठीक है, थ्योरम्स आप प्रूव करते हैं, एक्सियम यू अज्यूम देम टू बी ट्रू। ओके, सेकंड थ्योरम प्लीज राइट डाउन। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। सर 1 मिनट ऊपर कर दो, लास्ट लाइन नोट करनी थी। हो गया सर। हाँ जी, कौन स्टेट कर रहा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम? आदित्य। हाँ जी, सिद्धांत बोलो। Sir, the sum of two sides is greater than the third side and the difference of two sides is less than the third side. हाँ जी, दोनों बेटा आपस में इंटरप्लेटेड है, मतलब है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the third side.
given in triangle ABC, BC is greatest side. To prove sum of two side is always greater than एक्सक्यूज मी the सर greatest side. हाँ जी बेटा. सर मेरा ना अभी नेट चला गया था सर, जरा आप ऊपर कर सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं उसका. तो थोड़ा जूम आउट कर दो. ओके सर. Okay. Construction. चलो, who is going to tell me the construction? ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने कर दी है, अब आपको इसे इलेबोरेट करना है. बात उसको बोलो. हाँ जी, कौन बता रहा है कंस्ट्रक्शन? सर मैं अटेंड. बोलो. सर extend point A and C to point D such that AD is equal to CD. No, you are wrong, है ना? सर How can you extend point? Point can never be extended. हाँ जी, घर बोलो. सर BA को D से मतलब प्रोड्यूस करेंगे. D को D से नो. रघुवंश बोलो. Sir, construct a line segment from vertex A and vertex C such that ACD is an isosceles triangle. देखो, आपने क्या बोला? ये हमारा ABC ट्रायंगल था. समझो आपने कंस्ट्रक्शन जो बोली है ना, दिस इज ABC. वर्टेक्स A से और वर्टेक्स C से आपको एक लाइन खींचनी है सच दैट इट्स एन आइसोसेलेस. ये कंस्ट्रक्शन भी वैलिड है, ये भी वैलिड है. ठीक है, हाउ कम दिस ट्रायंगल यू विल गेट? स्पेसिफाइड नहीं हुआ ना कंस्ट्रक्शन में. हाँ जी, हु इज ट्राइंग नाउ? हाँ जी, बोलो प्रार्थना. So we'll draw line segments from point A and C such that the triangle formed is a right isosceles triangle. राइट एंगल का सिंबल है ही नहीं बेटा, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. एनीवन एल्स? Sir, extend line segment BA and C so that they meet on D. Wrong. Extend line segment BA and C. आपने ये बोला BA तो लाइन सेगमेंट है, इज C अ लाइन सेगमेंट? आप समझो ना, आप A C की लाइन में बोल दिया एक्सटेंड BA लाइन सेगमेंट BA एंड C, है ना? दैट मेक्स इट रॉन्ग. हाँ, फिर से बोलो. नहीं, पूरा स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट. सर वेट अंगद. हाँ जी, सिद्धांत. Extend line segment BA and point C so that they meet on point D. And what? And what? They meet at point D, but that's it. And AD is equal to C. Okay. तो आपने मिस्टेक क्या की? एक्सटेंड लाइन सेगमेंट BA एंड पॉइंट C. बेटा, पॉइंट को कभी आप एक्सटेंड कर ही नहीं सकते ना. एक्सटेंड किसको करते हैं? जिसकी लेंथ होती है उसको आप एक्सटेंड करते हैं. पॉइंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते. अंगद बोलो. Constructing a point D such that when it is connected to point A and C, AD is equals to CD. नहीं. Sir, एक और मैं ट्राई कर. हाँ जी, ट्राई करो. Sir, extend the line segment. No, extend the line BA to a particular point. अच्छा नहीं सर, फिर वही आ जाएगा कि C पॉइंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते पॉइंट को. C के साथ एक्सटेंड बोल ही क्यों रहे हो आप लोग? ठीक है, लेट्स सी इट हियर. एक्सटेंड BA. आप AB नहीं बोलेंगे कभी भी. AB को आपने बोला तो B की साइड से एक्सटेंड हो रहा है. एक्सटेंड BA बोला तो वो A की साइड से एक्सटेंड होगा. एक्सटेंड BA टू पॉइंट D. B को आपने बोला तो B की साइड से एक्सटेंड हो रहा है. एक्सटेंड BA टू पॉइंट C. B को आपने बोला तो वो A की साइड से एक्सटेंड होगा. एक्सटेंड BA टू पॉइंट D. B को आपने बोला तो वो A की साइड से एक्सटेंड होगा. एक्सटेंड BA टू पॉइंट C. B को आपने बोला तो वो A की साइड से एक्सटेंड होगा. एक्सटेंड BA
such that AD is equals to CD. Join CD. अंगद आपने जो बोला था वो सही था, बट लैंग्वेज थोड़ा सा गलत थी, अदरवाइज इट वाज ओके. Okay, sir. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द ट्राइंगल. प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पर. प्रूफ इन ट्राइंगल ACD. ठीक है. ट्राइंगल ACD में you will say AD is equals to CD. Therefore अच्छा, यहाँ पर हम जो है, if we'll take this, let's say if I'll take this angle as 1, therefore this angle will also be 1. ठीक है. And let's take this angle as 2. अच्छा, यहाँ पर ना हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. इसको ज्वाइन कर देते हैं. That's why thinking कि क्या गड़बड़ हो रही है. This you make it equal and this becomes angle 1. ठीक है. So you say extend AD such that AD is equals to AC and join CD. So in triangle ACD, AC is equals to AD. Therefore, angle ACD is equals to angle ADC is equals to angle 1. Angle BCD is angle 1 plus angle 2, और एंगल BCD is एंगल 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बेटा? एंगल 1 की जगह पर हम एंगल ADC लिख सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. So angle ADC plus angle 2. ठीक है. Now angle BCD, can we say this is greater than angle ADC? Yes, sir. ठीक है. So यहाँ पर बेटा जो हमने ऊपर थ्योरम की थी, थ्योरम क्या थी? Bigger side will have greater angle opposite to it, and this theorem goes vice versa also. That is, in a triangle, bigger angle will have bigger side opposite to it. Okay. Now in this triangle, we are talking about the bigger triangle BDC. In triangle BDC, angle BCD is greater than angle ADC. Thus, कौन सी साइड बड़ी होगी बेटा? चेक करो ट्राइंगल BDC में. सर BD. हाँ जी. BD is greater than BC. राइट. BD किसके इक्वल है बताओ? BD is sum of BA plus AD. AB plus AD. But AD किसके इक्वल है? AC. So AB plus AC is greater than BC. Hence proved.
सर समझ नहीं आया। Okay, we'll take it again. पहले कॉपी कर लो है ना, विल डिस्कस इट. Sir, done. Done. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move. Yeah, usually when I'll get first done message, I'll wait for 15-20 seconds. Then we'll shift. But if you have not done it, please let me know. After shifting, then don't chase up. Please come back to that screen. Okay, let's take it once again. Okay, shift explanation part I'm taking. Now we have got this triangle is there. This is A, B, C is there. Okay. First आपको construction करना है. Construction में you are extending BA to point D such that AD is equals to AC. ठीक है, ये construction थी आपकी. And then you are joining CD. आपने CD को join किया है. ठीक है. Now in this, if this particular angle is 1, then this angle will also be 1, and let's say this angle is 2. Clear है यहाँ तक बेटा? Now we'll say that angle BCD, angle BCD जो है, that is this particular angle we are talking about. This is equals to angle 1 plus angle 2. But ये angle 1 जो है, ये वाला angle भी 1 है. So we can say angle BCD is equals to angle ADC plus angle 2. हाँ जी, any doubt? No sir. No, sir. तो एंगल BCD बड़ा है ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि एंगल ADC में 2 ऐड कर रहे हैं तब जाकर हमारे पास BCD आ रहा है. सो BCD इज बिगर देन एंगल ADC. ठीक है. एंड दिस इज वी आर यूजिंग द थ्योरम दैट इन अ ट्रायंगल side opposite to bigger angle is bigger. बिगर एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होगी. तो एंगल BCD के अपोजिट साइड कौन सी है? AD. सो वी आर गेटिंग AD, सॉरी BD इज ग्रेटर देन ADC के अपोजिट. बेटा ADC के अपोजिट ये वाली साइड है और इसके अपोजिट ये वाली साइड थी. ठीक है. सो BD इज ग्रेटर देन BC. अब चेक करो कोई डाउट यहाँ पर. अब BD किसके इक्वल है? सिद्धांत क्लियर है बेटा? So this is AB plus AD is greater than BC. And AD by construction, AD was equal to this is greater than BC. Hence proof. हाँ जी, डन. सर हमने ADC से क्यों कंपेयर किया? दोबारा बोलो.
सर हमने एंगल एडीसी से क्यों कंपेयर किया बीसीडी को? बेटा क्योंकि हमें अपना रिजल्ट चाहिए था ना, फिर हमें ये था कि एडीसी के अपोजिट जो साइड है वो बीसी आ जाएगी हमारे पास, और इसके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट साइड इज नथिंग बट ए बी प्लस ए सी है ये साइड, तो हमारी इनइक्वालिटी जो है प्रूव हो जाएगी इससे। सर कोई और मेथड है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ना करें? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के साथ ही है, कंस्ट्रक्शन से डरो मत, ठीक है। 10th में फुल चैप्टर, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन 50% विद प्रैक्टिस है ना, एज यू आर प्रैक्टिसिंग इट, सॉल्विंग इट, यू विल मेक आउट कि हाँ इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी है, एंड 50% इज लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है। आपके पास बेटा यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी था, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग इट, यू वांट वन ऑफ द साइड, आप दो एंगल्स के अपोजिट दो साइड्स को कंपेयर करेंगे, तो लेकिन यहाँ पर ये दोनों साइड का सम और तीसरी साइड कंपेयर होनी थी, तो हमने क्या किया, हमने ये जो AC वाली साइड है इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर बना दिया है ना, तो ये C डैश ले लो एक तरीके से आप। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, दो साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं। हमें बोलना है ये वाली साइड जो है इस साइड से बड़ी है, ओके। अगर ये साइड बड़ी है तो डेफिनेटली हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल से बिगर है, और ये प्रूफ कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो दूसरा येलो वाले में ये पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, फिर उस चीज को हम रिवर्स में प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलो लेट्स रिवाइज इट अगेन, हु इज गोइंग टू हेल्प मी, लेट्स कॉल अप आर्यन, माइक पे आओ बेटा। यस सर। हाँ जी, बिगर साइड हैज गॉट बिगर एंगल अपोजिट टू इट, कंस्ट्रक्शन बताओ फटाफट। नॉप नॉप, शौर्य आप बताओ बेटा। सर कैन यू रिपीट सर, आपकी आवाज कट रही थी। बिगर साइड हैज गॉट बिगर एंगल अपोजिट टू इट, है ना, अभी जो दो थ्योरम किए हैं प्रूफ। शौर्य यस सर। कैसे करेंगे स्टार्ट? पहली वाली थ्योरम है, केशव कैसे करेंगे? सर हमको एंगल AC बिगर बताना, सॉरी हमें लाइन AC साइड AC बिगर बतानी है ना। नहीं, ये गिवन है AC इज बिगर देन AB, है ना। टू प्रूफ में एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ये टू प्रूफ है। अपूर्व आप बताओ। सर इसमें सर हम हमारे पहली थ्योरम का इनवर्स यूज करेंगे। नहीं, पहली थ्योरम ही यही है हमारी, बिगर साइड हैज गॉट बिगर एंगल अपोजिट टू इट। हाँ जी, कैसे स्टार्ट करेंगे अपूर्व? हाँ जी यश आप बोलो। Sir, हाँ जी, sir will draw BD such that D lies on AC and AB is equal to AD. वेरी गुड, ठीक है। टेक अ पॉइंट D on AC such that AD is equals to AB and then you join BD, ठीक है। आगे बोलो फटाफट। उसके बाद आप क्या कहेंगे, सर ये एंगल ये साइड इसके इक्वल है, इसलिए ये एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इस एंगल को 1 बोला, इसको 1 बोला, इसको हम 3 बोल रहे हैं और इसको हम 2 बोल रहे हैं। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाएंगे हम? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 3। ठीक है, एंगल Yes, 1 sir. और दोनों साइड, अब एंगल 1 जो है वो 2 प्लस 3 है, बट हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए था ना प्रूव करने Yes, के लिए। sir. तो दोनों साइड क्या करेंगे? Angle 1 plus angle 3. 2 times of angle 3. Yes, Angle sir. 1 plus 3 is angle ABC is equals to angle ACB, है ना, angle 2 plus 2 times of angle 3, and angle ABC is greater than angle ACB. Hence proof. ठीक है बेटा, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, मैथ्स मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इज बिटवीन द एफर्ट्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो एफर्ट लगाते हैं तो क्लास खत्म होती है, यू रिवाइज इट डाउन। ठीक है, आप इंस्टेंट क्लास खत्म होगी, उसके बाद उसी इवनिंग में यू रिवाइज इट, और जो भी नेक्स्ट क्लास होनी है उससे पहले रिवाइज करो। 3:45 क्लास होनी है, आप 3:30 पर भी रिवाइज करोगे ना 15 मिनट्स के लिए, गुड इनफ, मेरे को और नहीं चाहिए। बट वो रिवीजन ही नहीं करोगे तो आगे करते जाओगे, पीछे वॉश आउट होता रहेगा। ठीक है, ये मैंने इंस्टेंटली क्यों लिया है? जस्ट टू टेल यू कि इंस्टेंट क्वेश्चन लेने पर भी आप पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उससे, और अगर आप इसको रिवाइज ही नहीं करेंगे तो यू फॉरगेट अबाउट इट, है ना। तो आप बस आगे करते जा रहे हैं, पीछे वॉश आउट होता जा रहा है। आपको पूरी बाउंड्री लगानी है, घर की बाउंड्री, है ना। वो बाउंड्री कभी लगी नहीं पाएगी, घर की बाउंड्री। क्यों, क्या हो रहा है? आप यहाँ पर बाउंड्री लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर ये बाउंड्री जो है वॉश आउट होती जा रही है, तो अब पूरे साल जो वो ऐसे ही लेफ्ट राइट घूमते रह जाओगे, बाउंड्री पूरी कवर ही नहीं होगी कभी। ठीक है, और जबकि आपको रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, यहाँ पर आपने ये बाउंड्री लगाई है, जब आप रिवीजन करते हो ना, रिवीजन में बेसिकली आप इस बाउंड्री पर कीले ठोक रहे हो, तो वापस घूम के आओगे ना, वो बाउंड्री वहां मिलेगी। आंधी तूफान भी आए होंगे ना, तो कुछ पार्ट उस बाउंड्री का वहां पर मिलेगा आपको, उसको वापस खड़े करने में पूरी मेहनत दोबारा नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए प्लीज रिवीजन करें, और टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर टू मेक श्योर यू आर डूइंग योर रिवीजन। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड कि टेस्ट में स्कोर कितना है, मोर इंटरेस्टेड कि आपने टेस्ट किया है या नहीं किया है। Sorry, sir, I got disconnected in between. My audio got disconnected. Sir, may I answer? बेटा आप इन बिटवीन आ रहे हो ना, डोंट डिस्टर्ब व्हेन द टीचर इज स्पीकिंग समथिंग। Sorry, sir. एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट। अगर आपको लग रहा है टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, सेंड मी अ मैसेज, आई विल नॉट पोस्ट योर स्कोर ऑन द ग्रुप, बट टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है आपको। चलो भाई, ये दोनों थ्योरम हो गई हमारी। ठीक है सर, जो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली थ्योरम है सर, उसमें कंस्ट्रक्शन हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूफ ही नहीं होगा। आप बताओ कैसे प्रूफ करोगे? हमें प्रूफ करना है ए बी सी, हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। आप बताओ कैसे करोगे? बेटा अभी तक तो हमने ना थ्योरम सिर्फ पढ़ी ही है, प्रूफ तो ये पहली बार कर रहे हैं हम यहाँ पर। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 7th में भी सिर्फ ये पढ़ा था, प्रूफ तो पहली बार आ रहा है 9th में। ठीक है, इसी को आप जो है लॉजिकल वे में भी आप एक प्रूफ ले सकते हैं कि यू नो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो अगर आप बी से सी तक सीधा जा रहे हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अगर आप थोड़ा सा डाइवर्ट होकर जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस बड़ा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो है देन क्वेश्चन विल बी प्रूव दैट थिंग, है ना, जो आप स्टेट कर रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, प्रूव दैट। तो वो कैसे प्रूव करेंगे? तो दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज द प्रूफ फॉर सेइंग।
Any other question? ओके तो बेटा हमने जो थ्योरम की है दैट थ्योरम इज ट्राइंगल में बड़े एंगल के अपोजिट बड़ी साइड होगी फर्स्ट वन, सेकेंड इज बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल होगा, थर्ड वन सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है, these three theorems are there. Okay, let's take the question. In a quadrilateral ABCD, prove that number one, चलो यहीं पे ले लेते हैं, prove that sum of sides is greater than sum of diagonals. अब बेटा ये क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं है, सुन लो आप. ठीक है, विल डिस्कस इट आउट क्योंकि हमें 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. सो दिस इज योर ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल इज देयर, दैट्स ABCD, दिस इज O इज देयर. तो सबसे पहले जो वर्ड में लिखा है उसको आपको फिगर में लिखना है टू प्रूव. हमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD is greater than AC plus BC, AC plus BD, है ना. First one is sum of the sides of quadrilateral is greater than sum of diagonals. हाँ जी, यहाँ पर डाउट तो नहीं है? नो सर. ओके, अब देखो हमारे पास है ही कितनी चीजें, थोड़ी सी तो चीजें हैं. पहली चीज क्या है, कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लगने का चांस ही नहीं है. दूसरा है ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट ग्रेटर साइड, वो भी नहीं लगेगा, यहाँ पर एंगल की किसी बात ही नहीं हो रही है. थर्ड इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जहाँ पर साइड्स की इनइक्वालिटी की बात होती है. यहाँ पर साइड्स आ रही हैं तो इनइक्वालिटी की बात होगी. ठीक है, अब फिर से ध्यान से सुनो. ठीक है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है, अब ये जो ग्रेटर वाला सिंबल यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है हम जो यूज करेंगे वो यूज क्या करेंगे, सम ऑफ टू साइड पहले आएगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड बाद में आएगा. हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, जहां पर AB एंड BC will form two sides and AC will form third side. समझ में आ रहा है लॉजिक? तो कौन सा ट्राइंगल लेना पसंद करेंगे आप? BOA. कौन सा बोल रहे हो, BOA? ABC भाई, BOA में सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड. अब सम ऑफ टू साइड अगर ये दोनों साइड लोगे तो ये तो डायगोनल की साइड बन रही है, जबकि डायगोनल की साइड यहाँ पर स्मॉलर बता रहा है और आप ये ट्राइंगल लेकर डायगोनल की साइड को बिगर की उसमें रखोगे ना, आप क्या कहोगे, AO प्लस BO इज ग्रेटर देन AB. ये तो गड़बड़ हो जाएगी. ये तो डायगोनल का पार्ट बन रहा है और ये ग्रेटर भी बता रहा है, हमें अपोजिट चाहिए. तो विल टेक द ट्राइंगल ABC. ठीक है, सो यू विल से in triangle ABC, AB plus BC is greater than AC. Triangle inequality theorem. हाँ जी, और बताओ कौन सा लें? फटाफट. CD and ADC. In triangle ADC, AD plus CD is greater than AC. अब क्या करें, अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर लेफ्ट साइड तो हमारा मैच कर जाएगा इनइक्वालिटी का, बट राइट साइड वो 2 टाइम्स ऑफ AC आ रहा है, गड़बड़ हो गई ना.
हाँ जी, एनीवन एल्स, क्या करें अभी? सर ट्रायंगल ए बी डी भी तो ले सकते हैं। वेरी ऐसे है ना, बट शी सेइंग इज कि सर हमें बीडी चाहिए राइट साइड में, बीडी नहीं बीडी. सो इन ट्राइंगल ए बी डी यू विल से ए बी प्लस ए डी, है ना. मैं हमेशा बेटा जो साइड्स हैं उनको सम ऑफ टू साइड की जगह रख रहा हूँ, और जो डायगोनल है उसको थर्ड साइड पे रख रहा हूँ. इज ग्रेटर देन बी डी. एंड फोर्थ ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप? ट्राइंगल मतलब BDC है ना, you will say BC plus CD is greater than B. Now you will add them to get 2 times of AB plus BC plus CD plus DA is greater than 2 times of AC plus BD, or AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. Hence proved. सर इसे नोट कर ले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और होगा जो मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा, और बाकी क्वेश्चंस विल जस्ट डिस्कस. Okay. But I think all of you can go for that na screenshot thing. Question होता है, you can take a screenshot then copy it later on. अभी यहीं पर बेटा quadrilateral का इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन बनता है, that in a quadrilateral you have to prove that 2 times of sum of diagonals is greater than sum of sides. सर वो स्क्रीनशॉट लेगा था तेरा। थोड़ा सुनो। थैंक यू। So this is your A, B, C, D. Sum 2 times of sum of diagonal is greater than sum of sides. Okay. So basically you have to prove 2 times of AC plus BD is greater than AB plus BC plus CD plus DA. हाँ जी भाई, कौन हेल्प कर रहा है? आदित्य बेटा माइक पे आओ, क्या हो गया अब? यस सर। हाँ जी, तो इसमें बेटा हमें यहाँ पर देखो, अभी ग्रेटर साइन जो है ना, ग्रेटर वाला साइन वो डायगोनल्स के साथ है, और हमें पता है ग्रेटर वाला साइन जो है वो सम ऑफ टू साइड्स के साथ होता है, सम ऑफ टू साइड्स. ठीक है, इसका मतलब है हम जो भी ट्राइंगल लेंगे वहां पर जो टू साइड्स हैं वो दोनों साइड्स डायगोनल की होनी चाहिए. तो कौन सा ट्राइंगल लेना पसंद करेंगे? सर बीच में जहाँ पे डायगोनल मार्क कर रहे हैं उसको ओ करके ए ओ बी ले लेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड. So what he Aditya is saying is कि sir will take this smaller triangle now
वाई स्मॉलर ट्राइंगल? क्योंकि यहाँ पर दो जो साइड्स हैं वो डायगोनल की फॉर्म हो रही हैं एंड विल अप्लाई सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड। तो यहाँ पर आदित्य इक्वेशन क्या बनेगी? AO plus BO is greater than AB. वेरी गुड। सेकेंड ट्राइंगल बताओ। सर डी को सी भी तो ले सकते हैं। बीओसी, बीओसी में इक्वेशन बताओ। Sir, सर BO BO plus CO is greater than ABC। बस वेरी गुड। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे टू गेट योर रिजल्ट एंड हेंस। इन सबको ऑर्डर में लिखना जरूरी है? नहीं, बट चारों ट्राइंगल लेने हैं आपको, है ना? तो मतलब बेटा सर हम अपने हिसाब से ले सकते हैं कोई भी ट्राइंगल पहले? हाँ ले सकते हो, बट ऑर्डर में लोगे तो ज्यादा बेटर है ना। अच्छा है ना, आप ऑर्डर वाइज मूव करो, पहले ये लिया, फिर आपने ये लिया, फिर ये लिया, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल के दो क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन में बड़े वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है, 4 ट्राइंगल्स, और दूसरे क्वेश्चन में छोटे वाले 4 ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है? तो उसको थोड़ा याद रखना है ना, विच ट्राइंगल्स यू हैव टू टेक, ठीक है? वन क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, whosoever is solving it first, पूरा प्रूफ और कंस्ट्रक्शन के साथ लिखकर आपको आंसर पोस्ट करना है ना। सो whoever is solving it first, so I'll say कि first 5 or 6 answers, then don't post any more answers on it. Question is, in quadrilateral ABCD, है ना? I am looking forward who all are posting the solution, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल ABCD में बेटा AB is smallest side and सर कहाँ पे पोस्ट करना है? ग्रुप पर बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पर। CD is longest side, prove that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। यहाँ पर आप यूज करेंगे bigger side has got bigger angle opposite to it। So question is something like this, इस टाइप में आपकी फिगर है। This is your A B C D, है ना? देखने से पता चल रहा है AB सबसे छोटी साइड है, CD सबसे बड़ी साइड है। आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल A जो है वो एंगल C से बिगर होगा एंड एंगल B विल बी बिगर देन एंगल D, ठीक है? दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, नॉट दैट इजी, ट्रिकी है, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? वंस यू गेट द ट्रिक इट बिकम्स वेरी इजी। चलो लेट्स एंड द सेशन। टुमारोज क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम उसमें इनइक्वालिटी के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। चलो लेट्स एंड द सेशन हियर। क्वालिटी हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो गया है शायद। 9th के सिलेबस से? यस सर। चलो विल कीप यस सर। ठीक है, लेट मी चेक आउट इट एंड विल कीप इट ऑप्शनल। सर अगला चैप्टर मैथ्स। मैथ्स लेना है अगला? यस सर। यस सर। सर सर्कल्स। सर ग्रेविटेशन, साइंस, फिजिक्स। हाँ बेटा बैलेंस बनाकर रखते हैं ना, साइंस भी इम्पोर्टेंट है। ओके सर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ठीक है, फिजिक्स पहले थोड़ा रिवाइज कर लेंगे फिर ग्रेविटेशन कर लेंगे। और आप कह रहे थे कि इसके अंदर जी वाले क्वेश्चंस हैं। कौन से वाले बेटा? जी वाले जिसमें कि एक्सेलरेशन को हम जी लेके करते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम नहीं, आई एम नॉट जी ले गेटिंग। लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड लेके। हाँ जी वाले क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ग्रेविटेशन में वही क्वेश्चन आएंगे था, ठीक है? उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वी विल सी दैट। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर, बाय सर।